Good morning, all of you. Today I am going to continue chapter number 2 altogether of our EVS workbook. It is page number 26. It is the last part of this chapter. Page number 26. Answer the following question. Question दिए गए हैं, आंसर कंप्लीट करना है. हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? ये ओन आंसर है, आप जैसे जाते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है. एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं. आई गो टू स्कूल वॉकिंग विथ अदर फ्रेंड्स ऑफ माई लोकेलिटी. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? वाई. क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप स्कूल जाना क्यों पसंद करते हो? I get to learn new things in the school daily. The teachers teach us very well. Different educational activities are organized regularly in the school. And there are lot of friends in the school. Due to all these reasons, I love going to school. Next question, question number 3. What do you like in the school? आप स्कूल में क्या पसंद करते हैं? ये भी उन आंसर लिखना है. I like my class, my teachers, prayer, educational activities and celebrations of different festivals and national festivals held in the school. Question number 4. Do you help anybody? How? क्या आप किसी की मदद करते हो? कैसे मदद करते हो? तो ये भी आपको ऑन आंसर करना है. यस, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. यस, आई हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इन ट्रबल. वंस रोहन स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट इन आवर स्कूल गॉट हर्ट इन हिज लेग. आई कैरिड हिज बैग एंड टुक रोहन टू हिज हाउस वॉकिंग स्लोली. Next question, question number 5. By whose help could Rupal reach school? रूपल किसकी मदद से स्कूल पहुंच सकती है? किसकी मदद से स्कूल पहुंचेगी रूपल? हमने चैप्टर में रूपल के बारे में पढ़ा था, जो एक गर्ल है और उसको पोलियो नाम की बीमारी है. तो वही आंसर यहाँ पर हमें करना है. रूपल वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो. एन organization gifted Rupal with a wheelchair and hence she was able to attend the school with the help of a boy living in her neighborhood. Question number 6. What did Rupal see while coming to school? रूपल जब स्कूल से आ रही थी तो उसने क्या क्या देखा? Rupal saw school's garden, different classes, students, teachers and playground etc. when she came to school. जब वो स्कूल आई तो उसने क्या क्या देखा? 7th number, who all might have helped Rupal? रूपल की हेल्प कौन कौन कर सकते हैं? The children living in Rupal's locality, students and teachers of the school helped Rupal. 8th number question, in which work of this school does Rupal need help? रूपल को स्कूल में किन किन चीज़ों में हेल्प की ज़रूरत चाहिए होगी? रूपल नीड्स हेल्प फॉर द फॉलोइंग वर्क इन द स्कूल. Number 1, when she got washroom in the school. Second number, to go for
prayer and other programs. Next page, page number 27. Ninth number question, write a story based on the picture given below. यहाँ पर पिक्चर दी गई हुई है और इसी के बेस पर हमें स्टोरी लिखनी है। तो हमने टेक्स्ट बुक में ये किया हुआ है, अभी हम यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट करते हैं पिक्चर के बेस पर। स्टोरी, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो हमने एक्स्ट्रा लाइंस कुछ खींच करके यहाँ पर कोशिश किया है इसके अंदर लिखने की। तो आप भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन खींच लेंगे जिससे कि स्टोरी हमारी इजीली यहाँ पर छोटी सी जगह में कंप्लीट हो सके। अ पॉटर लिव्ड इन अ विलेज। ही हैड अ डोंकी। द पॉटर मेड pots for his living. Daily in the morning, the potter went out of the village, dug clay. Loaded the clay on his donkey and brought it home. He soaked the clay and prepared it for making pots. After this was done, he took soaked clay and placed it on his potter wheel. He made pots of different shapes and sizes with both his hands. Then he baked the pots in an oven. The baked pots were then ready. He loaded them on a vehicle and took them to nearby city for selling. In the city, he sold the pots to the trader. This way, the potter earned his living. Next question. Answer the following question on the basis of above पिक्चर्स। पिक्चर के बेस पर यहाँ पर हमें आंसर कंप्लीट करने हैं। अभी तक हमने क्या लिखा, स्टोरी लिखा पिक्चर के बेस पर। अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे तो यहाँ पर हमें आंसर करना है। नंबर 1, फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग ग्रास फॉर द डंकी। कहाँ से डोंकी के लिए पॉटर घास अरेंज करेगा। द पॉटर ब्रिंग्स ग्रास फॉर द डोंकी फ्रॉम आउटसाइड द विलेज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, who may be bringing water for the potter to soak the clay. क्ले सोक करने के लिए जो पॉटर को वाटर की ज़रूरत पड़ती है वो उसके लिए कौन ले करके आएगा। तो उनके घर में जो फैमिली मेंबर होंगे वही ला करके दे सकते हैं या पॉटर को खुद ही ये काम करना पड़ेगा। आंसर, आइदर द पॉटर brings the water required to soak the clay himself or his daughter or wife would bring it. Third number question, who would help the potter to make pots. pots बनाने में पॉटर की हेल्प कौन कर सकता है या कौन करेगा। तो ये काम भी उनके फैमिली मेंबर ही कोई कर सकते हैं। द पॉटर्स वाइफ हेल्प हिम इन preparing pots. Next page, question number 4. What may the potter require to fire the pots? पॉट को
आग में गर्म करने के लिए पॉटर को क्या क्या चाहिए होगा या क्या चाहिए होगा? द पॉटर में रिक्वायर ड्राई ग्रास, वुड, कोल एक्सेट्रा टू फायर द pots. Fifth number question, what other purposes is the pot used for? और किस किस पर्पस के लिए पॉट को यूज़ किया जाता है? तो जो मिट्टी का बर्तन होता है ये बहुत सारे काम में लिया जाता है, सिर्फ एक पर्पस के लिए ही नहीं, बहुत सारे पर्पस होते हैं इसके। लोग अलग अलग रीज़न से ये पॉट खरीदते हैं और अलग अलग पर्पस से लेकर के इसको अलग अलग तरीके के यूज़ में लेते हैं। द पॉट इज़ यूज्ड टू फिल वाटर, पॉट इज़ यूज्ड टू स्टोर ग्रेन, पॉट इज़ यूज्ड इन सर्टेन रिलीजियस purposes by placing coconut above it. Next question, question number 10. Answer the following as per the example. आंसर करना यहाँ पर एग्जाम्पल जैसा दिया गया है उसी के बेस पर अगले जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, नेम ऑफ आइटम पॉट, आइटम का नाम क्या है? पॉट। अभी यहाँ पर बॉक्स दिया गया है और ये कैसे सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशन। फिर सेकंड बॉक्स में लिखा हुआ है पॉटर, थर्ड में ड्राइवर और बिजनेसमैन। अभी नीचे प्रोफेशन के नीचे क्या लिखा है? हाउ आर दे कनेक्टेड। ये सारे आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? कौन कौन? पॉटर, ड्राइवर और बिजनेसमैन आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? तो पॉटर का काम क्या होता है? मिक्स पॉट। ड्राइवर का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट्स पॉट्स फ्रॉम पॉटर टू बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन का काम क्या होता है? सेल्स पॉट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर हम करेंगे। नेम ऑफ आइटम, आइसक्रीम। आइटम का नाम क्या है? आइसक्रीम। प्रोफेशन एंड कैटल रियरर एंड बिजनेसमैन एंड वेंडर्स। प्रोफेशन के नीचे लिखा है हाउ आर दे कनेक्टेड। जो प्रोफेशन है आइसक्रीम का, अभी जो आगे नाम दिए गए आपस में ये कैसे कनेक्टेड हैं? जो ये प्रोफेशन करते हैं आइसक्रीम बेचने का, बनाने का, तो कैटल रियरर, बिजनेसमैन और वेंडर ये कैसे आपस में कनेक्टेड हैं? कैटल रियरर कलेक्ट मिल्क, जो कैटल रियरर होता है वो मिल्क कलेक्ट करता है। बिजनेसमैन बाइज मिल्क एंड मेक आइसक्रीम, जो बिजनेसमैन होता है वो मिल्क खरीदता है और आइसक्रीम बनाता है। वेंडर का क्या काम होता है? सेल्स आइसक्रीम। थर्ड नंबर, नेम ऑफ आइटम क्लॉथ्स। प्रोफेशन, हाउ आर दे कनेक्टेड। ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? कौन? टेलर, शॉपकीपर और वॉशरमैन आपस में ये कैसे कनेक्टेड हैं? क्लॉथ के बिजनेस में, क्लॉथ के काम में। टेलर का काम क्या होता है? स्टिचेस क्लॉथ्स। शॉपकीपर का काम क्या होता है? बाइज सेल्स क्लॉथ्स। एंड वॉशरमैन यानी कि धोबी, जो कपड़े धोता है, वॉशेस द क्लॉथ्स। हियर इज एक्टिविटी, visit different professionals of your village and obtain information about their work, note it down. विजिट डिफरेंट प्रोफेशनल्स, जो आपके गांव में अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे। जैसे हमने पॉटर के बारे में, ये एक प्रोफेशन है, टेलर और डॉक्टर, ये सारे क्या है? अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। तो उसी तरीके से आपको अपने गांव में जो अलग अलग प्रोफेशन काम करने वाले लोग हैं अपने गांव में, उनके बारे में आपको पता करना है और उनके काम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जुटाना है और यहाँ पर नीचे आपको लिखना है। तो ये ओन वर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर ऑल टुगेदर
फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।